Subscribe Quick Views, press the bell icon and never miss an update. कोर्ट में जब ये रिपोर्ट पेश होगी तब तक इंतजार करेंगे या किसी और जरिए से कोर्ट के जरिए? देखिए, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं जरूर बता रहा हूं कि अभी हमारा सीबीआई को चिट्ठी लिखना एक फर्स्ट स्टेप है। उसके आगे क्या क्या कदम हमको उठाने की जरूरत पड़ेगी वो हम सब उठाएंगे, लेकिन इस मामले के तह तक हम जरूर जाएंगे। इस मामले को किसी तरह से, इस मामले की सच्चाई तक हम पहुंचने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। Sir, Shobhik has not been granted bail today, and the court says that there is evidence against him at least. Well, as far as the grant of bail to Riya is concerned, the Narcotics Control Bureau case against Riya is a very weak case according to me. The real case against Riya is of administering the narcotics to Sushant without his knowledge. And the real case against Riya is for taking Sushant, because the doctors to whom Sushant was to be shown was decided by Riya. To the 5 doctors whom she took Sushant to, whether she used to disclose to them that Sushant is being administered drugs also, along with whatever his problem may be, mental problem may be. So the real problem for Riya will be when those issues come up. The narcotics case is not big, and as far as Shobhik is concerned, obviously the High Court has found something very grave with regard to Riya and her brother being involved in drug trade or traffic of drugs. Probably because the evidence against Riya was not very direct, she has been granted bail, and as far as evidence of being a part of the cartel against Shobhik must have been higher. That is why probably the High Court has not granted bail to सर, Shobhik. एफआईआर में जो 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का आरोप था, उस पर सीबीआई के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और पिछले 1.5 साल में रिया पर सिर्फ और सिर्फ 55 लाख रुपए खर्च हुए और 70 करोड़ का जो पिछले 5 साल का ट्रांजैक्शन है वो सुशांत ने अपने खर्चों पर किया। देखिए, जो परिवार का जो एफआईआर है, आप लोग इस बात बहुत पुरानी बात है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। परिवार के एफआईआर में सिर्फ ये लिखा था कि 17 करोड़ आया है और 15 करोड़ गया है। परिवार का कोई रहता नहीं था सुशांत के साथ, इसलिए परिवार को ये नहीं मालूम होता था कि कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि ये क्रेडिट कार्ड उनका रखती थी, सारे पिन इनके पास रहते थे, तो इसलिए उनके पैसे को उड़ा रही थी, तो सब जानते हैं। अब कितना उड़ाया है, कितना नहीं उड़ाया है, ये तो जांच कंप्लीट होगी तब पता चलेगा। आपके कहने से मैं 55 लाख नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से जांच इसमें बाकी है, और जांच जब चार्जशीट फाइल होगी तब पता चलेगा कि कितना अमाउंट इनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में गया है, और उसी हिसाब से फिर आगे इसका ट्रायल चलेगा। Sir, in June, family had recorded a statement before the Mumbai police saying that no suspicion. In July, they had filed a complaint with Bihar police calling it as an abetment of suicide. August, the father gave a statement that Riya poisoned my son. September, you had tweeted saying that it's a strangulation by death. So don't you think that this particular case, that everything is being changed, the version is being changed by the family? Well, as far as this case is concerned, this is why are so many channels today interested in seeing what I have to say? Why is the entire country wanting to know what has happened in this case? Because this whole case is shrouded with mystery. This case, right from day one, because the family members were not living with Sushant, obviously we did not have access to what was happening in his household and around him. So as and when information is coming out, we are going ahead and taking this case to its logical end. So the quest for finding the truth is a difficult quest in this case, because of the so much of secrecy in what has happened in that household in the last few days when Sushant died, or rather from the time when Riya came in Sushant's life from April of 19. Sir, in your letter you said that no video was made, but the postmortem report says that there was a video which was made. Well, all this I'm saying on the basis of whatever has come in the public domain, and I think, if I'm not mistaken, Sudhir Gupta had said in one of the interviews that no video was made. So I don't know now what all he has given in the report. My specific request to him to give me a copy of the report has failed on deaf ears, and I may have to move the court to get a copy of this report. Sir, if CBI is not constituting a new team, will you be moving the court seeking a direction? I've already said that. थैंक यू। आज हमने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि एक नई फॉरेंसिक टीम की गठन की जाए
जो कि इंडिया के जो बेस्ट फोरेंसिक डॉक्टर्स हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का रवैया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट का जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, उनका जो सारा कंडक्ट है बहुत ही सवालिया निशान उठाता है। उनके डॉक्टर टीवी चैनल पे आकर के बताते हैं कि क्या उनका फाइंडिंग है, जबकि कोई रिपोर्ट अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे रिपोर्ट की कॉपी हमको मिले, जिसमें कि हम एक स्पष्ट रूप से कह सकें कि क्या इस रिपोर्ट में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। वो रिपोर्ट भी देने को तैयार नहीं है, पब्लिक डोमेन में आज तक रिपोर्ट नहीं दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही मेरे को बहुत पहले कहा था, ये एक्चुअली मेरे पास आए थे 1 साल पहले। हमारे बड़े अच्छे दोस्त अमरेंद्र शरण की डेथ हुई थी और सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर एनसीपी लीडर भी थे अमरेंद्र जी, और इनका केस ये करते थे और इनके अमरेंद्र शरण की वजह से ही ये आज इस कुर्सी पे बने हुए हैं। तो जब उनकी देहांत हुई तो मेरे पास आए, कहे कि अब आप अमरेंद्र शरण आपकी बड़ी इज्जत करते थे, आगे से आप मेरा केस करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ वो बात करते थे, हमेशा डिस्कस करते थे इस केस को, बड़े डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने मेरे से। और जब मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा तो फोटोग्राफ देख करके स्ट्रेट अवे कहना है कि 200% ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है और इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये सुइसाइड का केस है। तो कोई इतना सीनियर डॉक्टर एक फोटोग्राफ देख के अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर कर रहा है, तो इसी से पता चलता है कि इस तरह की रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है। अगर ऐसी उनको रिपोर्ट, अगर उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट बन सकती थी, तो इस तरह से उनको लूज कमेंट 200% स्ट्रैंगुलेशन का केस बोलने का कोई हक नहीं था। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करें या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है, और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर है। सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये इनके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये पुलिस का काम है डिसाइड करना। आदमी का डेथ बाय हैंगिंग भी अगर हो तो उसमें भी ज़रूरी नहीं कि वो सुसाइड हो। अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा, और सुसाइड उसको कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, जिस तरह का इन्होंने टिप्पणी दी है, ये बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठाते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी और इनके तरीके पे भी। जिस तरह से इन्होंने शुरू में टीवी चैनल पे आकर के कमेंट किया कि कूपर हॉस्पिटल ने ये गलती की, वो गलती की, कोई बॉडी का कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया, बॉडी में कोई फ्रैक्चर है कि उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया, विसेरा सफिशिएंट नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का, इतने इनसफिशिएंट विसेरा में क्या इन्होंने जांच, और जो इनके पास आया था विसेरा वो भी बता रहे थे बहुत सूखा हुआ था, उसको उसमें से कुछ रिकवर करना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि जो ये गर्दन में निशान है ये उस जो कपड़े से दिखाया गया हैंगिंग, उस कपड़े से ये हो ही नहीं सकता। तो इन सब के बावजूद एक तो इनका टीम का साइट पे जाना, इनको साइट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जो रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल ने बनाई थी, जो उनके कागजात थे, जो उनके रिपोर्ट, जो उनके भी फाइंडिंग्स थे, उस फाइंडिंग पे इनको कमेंट करना था। ये जा करके वहाँ साइट पे देख रहे हैं, ये सब काम सीबीआई का है, ये सब काम सीबीआई को तय करना है कि साइट पे क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सीबीआई मुंबई पुलिस की जगह पे आज के दिन काम कर रही है। मुंबई पुलिस ने इसका इंक्वेस्ट का काम किया था, सीबीआई को अभी जब एफआईआर दर्ज है उस एफआईआर के बेसिस में जो इन्वेस्टिगेशन करना है तो साइट पे जाकर के देखना उनका काम है, इनका सिर्फ मेडिको लीगल एविडेंस देना था। तो इसमें ये बहुत पूरी तरह से चूक गए हैं। जिस तरह से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, जिस तरह से इनका कंडक्ट रहा है, जिस तरह से इनका लूज स्टेटमेंट रहा है, इनका जिस तरह से इनके टीम के मेंबर मीडिया के सामने आ करके कमेंट करते रहे हैं, इससे बड़ा क्लियर स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही इन्होंने लापरवाही की है, बहुत ही गैर जिम्मेदारा काम किया है, और सीबीआई को इनके कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस तरह से इन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदारा तरीके से इस तरह का रिपोर्ट किस तरह से बना दिया, और ऐसे ऐसे लीक करके मीडिया में जा करके बोलना
ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रेगुलेशन के खिलाफ है, एथिकल रेगुलेशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके भी खिलाफ है। तो ये इसीलिए हमने कहा है कि दोबारा इसमें जल्दी से जल्दी एक टीम